आइडिया है? स्क्रीन पे देखिए, अब कुछ ट्राई टू रिकॉल। ये देखिए स्क्रीन पे जो एक इमेज ऐसा दिख रहा होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन। मेरे ख्याल से ये अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एम आई ऑडिबल बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। So actually I was not getting response from your side, so I thought some connection problem is there. Okay. So let's discuss this hidden problem. पहले hidden लेंगे, उसके बाद फिर we are going to take this exposed problem. Okay. So let me open this one note. एक बार खोल लेते हैं। New sheet. Let's go for new sheet. Draw एक छोटा सा कुछ ये ड्रॉ कर लेते हैं। Let's say एक A ले लिया। फाइन। सो A इज वन ऑफ द टर्मिनल, है ना, या T1, T2, T3 ऐसे भी ले सकते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द बुक यू आर गोइंग टू गेट दिस नेम बाय A टर्मिनल, B टर्मिनल, C टर्मिनल, या A स्टेशन, B स्टेशन, C स्टेशन, इस तरह से आपको डिफाइंड होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक हिडन प्रॉब्लम, है ना। हिडन प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, एंड दिस इज गोइंग टू हैव सम रेंज, है ना। इसका कुछ रेंज होगा, वायरलेस है, मोबाइल है। So this, all these three are mobile. Clear? So A is going to have some range, B is going to have some range, C is going to have some range. सबका अपना अपना रेंज होगा, है ना। जैसे एज यूजुअल वी आर हैविंग सम रेंज ऑफ आवर मोबाइल, कि बहुत दूर चले जाएंगे तो मोबाइल इज नॉट गोइंग टू बी विजिबल, दिखेगा नहीं हम लोगों को, नेटवर्क में भी नहीं दिखाएगा, इजंट इट। सो लेट मी टेक दिस, एक ऐसा करके हम लोग ले लेते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा। एक सर्कल में ड्रॉ करना चाह रहा था जो ये कवर कर ले। फाइन। एक और सर्कल ड्रॉ करना चाह रहा हूं। इंसर्ट, कुछ इस तरीके से यहां से ले लेता हूं, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से मान लीजिए ऐसा करते हैं। सो दीज आर द टर्मिनल, है ना। A is this B is in vicinity of this A, है ना, and this C is in vicinity with your बच्चों आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा, अभी कुछ ऐसा आवाज आया नेटवर्क की कनेक्शन लूज हो गया। फाइन। सो A है ना, A is close to this B, so now B is able to see that A is there in the vicinity of this B, clear, and B is in the range of this C, ये इसके विसिनिटी में है, इसके पास में है, isn't it? Are you getting? अब क्या हो रहा है? Now suppose A start sending the packet to B, है ना, A को B पे पैकेट भेजना है, clear? So at the same time C is unable to sense, है ना, ये सेंस नहीं कर पा रहा है कि the process is already going on, clear? इसको तो ये दिख रहा है कि B is free, है ना, and none of the other devices are there in that vicinity, so I am capable enough to send the data to B. Are you getting? And A is seeing that, I mean, nothing is there, none of the, I mean, nodes, none of the station is sending the data, so I am really I'm interested to send the data, so I am able to send the data to B. Clear? Because this A is not going to find this B, and C is not able to find this A, because both A and C are not in the range of that particular mobile. Clear? So let's say it is beyond 10 meter, this is also beyond 10 meter. So assuming that the range is 10 meter, so this is the, suppose the entire diameter is your 10 meter. Clear? The diameter of this circle is your 10 meter. Assuming that these are circle, it seems that this is your elliptic,
है ना, but it is a circle because है ना, it is going to send the signal equally in all direction, so it is in circle form. Clear? So B is in vicinity of this C and B is in vicinity of this A. And now A has started sending the data to B. At the same time, now suppose C wants to send the data to B, so again C will start sending the data to B, and in that case the collision will occur. है ना? I think you might have heard slotted Aloha, pure Aloha, isn't it? Slotted pure Aloha में क्या होता था? So whatever, I mean channel, whatever the stations that are free is going to send the data to a particular channel. Let me show. If you remember slotted Aloha, अगर कुछ आइडिया होगा आपको तो मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल करवाता हूँ. So n number of stations are there, A, B, C, D, dot 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 Z, है ना, बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं. N number of stations are there. Clear? And all are interested to send the packet by using the same channel. Channel हमारे पास एक ही है. We are having fixed bandwidth. Bandwidth मैं infinite नहीं कर सकता हूँ. So all wants to send the data using the same channel. Clear? Abhi, right now suppose the packet of A has already been started. In the meanwhile, है ना, suppose in the meanwhile C has started its packet. यहाँ से यहाँ C start किया मान लीजिए. So and this part is going to be collide. So this is going to collide this, and this packet is going to collide with this packet. So the collision is going to happen, and neither packet A nor packet C or nor packet B, none of the packet is going to be sent from one end to another end. Suppose this is X end and this is Y end. So none of the packet is going to be sent from X end to Y end. Getting even a small portion of the packet is going to collide. Suppose this is the size of the packet, even the packet is going to collide somewhere here. And only this part is only in the region of this collision part. So neither this packet nor this packet is going to reach to the destination. Clear? But in case of slotted Aloha, you might have seen that we created slot. So this is slot 1. Next slot is this one. Next slot. This is all about your slotted Aloha, isn't it? So we created slot. And in this slot only, any of the station can send the packet. And slot 1, slot 2, slot 3, so on and so forth, dot 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 slot n. So in this slot only, any of the station can send the data. So none of the station is going to send the data somewhere here. So it is not possible. In this slot, it is not possible to send the data because the slot has already been defined. So here also we are going to face collision because at the same time in the same slot, suppose 3 or 4 stations are sending the packet. Clear? But at the same time, the efficiency is going to be increased. So here around 18% we are able to send the data, isn't it? Efficiency was around 18%. Here it has doubled. So by using that formula, we are able to see that around 36 point something we are able to achieve the goal. Fine. So right now we are not going to go in detail of slotted Aloha and pure Aloha, but since we are interested to understand the concept of your hidden and exposed problem, so that's why I explained this one. So up to here it is fine. बच्चों clear हो रहा है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Fine. Now this has started sending the data. Suppose A has started sending the data to B. Getting? The process is going on. It has started sending the data. And in the meanwhile, this C station or C node or C mobile station wants to send the data to B. See, this mobile wants to send the data to B. Clear? So at this point of time, the collision is going to happen. Clear? So this sort of thing is called your hidden problem. Clear? A is hidden to C, isn't it? Or vice versa, C is hidden to A.
this A and C are invisible to each other. Are you getting? So how this sort of problem is solved? So here basically it is going to send, this B is going to send some signal. So we are going to talk about solution. ये तो problem था. So this was problem. I stated the problem. What is the problem? Problem ये है कि this C is unable to sense A. क्यों नहीं sense कर पा रहा है? Because this C is not in the vicinity of this A. इसके range में नहीं है ना? Suppose it is beyond 10 meter range. Clear? So it is not able to identify whether A has started sending the data to B or not. ये sense नहीं कर पा रहा है ना? Later on we are going to go for CSMA. अभी हम लोग देखेंगे CSMA है ना? CDMA नहीं मैं बोल रहा हूँ, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस नहीं बोल रहा हूँ, CSMA दो होता है, एक CSMA CA और एक CSMA CD, दोनों देखेंगे हम लोग. क्लियर? CSMA CA, ये है क्या? फुल फॉर्म क्या है? एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं, बता दीजिए. Carrier sense multiple access, collision avoidance and collision detection. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. वृंदा आपने बताया होगा. Yes. हाँ, तो सी इज राइट. सी इज सेइंग कि कोलिजन दिस कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये कैरियर को सेंस कर रहा है. हियर वी आर अनएबल टू सेंस. सी सेंस नहीं कर पा रहा, देखिए ए को, है ना? तो इट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस बिकॉज वी आर यूजिंग सेम चैनल, है ना? एक ही चैनल यूज कर रहा हूँ, तो मल्टीपल यूजर्स आर एक्सेसिंग द सेम चैनल. तो इसको बोल दिए कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. एंड दिस इज, है ना, कोलिजन अवॉइडेंस. पैकेट जब कोलिजन होगा, है ना, डिस्ट्रॉय होगा, वी आर अनेबल टू सेंड द पैकेट, तो कोलिजन अवॉइडेंस. हियर वी कैन अवॉइड. कोलिजन होने के पहले ही मैं इसको अवॉइड कर दूंगा, है ना? व्हाट अबाउट दिस केस? कोलिजन डिटेक्शन के केस में क्या है कि द कोलिजन हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. अब मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूं कि कोलिजन हो गया है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम स्टेप, है ना? जैसे सपोज आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम लेट्स से मेरठ टू दिल्ली. मेरठ से दिल्ली मैंने स्टार्ट किया. क्लियर? अब मैं क्या किया? स्टार्ट कर दिया, जर्नी स्टार्ट कर दिया, न्यूज वगैरह नहीं देखा, स्टार्ट कर दिया. नाउ आई एम ट्रैप्ड ओवर हियर. अब मैं ट्रैप हो गया. ह्यूज ट्रैफिक इज देयर. जैसे आज भी हम लोग आ रहे थे तो बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक था. तो अब मैं कुछ स्टेप जो लूंगा, आई एम गोइंग टू सर्च सम पाथ. यहां से देखना है, यहां से देखना, कहां से देखना. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कोलिजन. यहां पर हम लोग कोलिजन हो चुका है ना? डिटेक्ट कर लिया मैंने. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम, है ना, प्रिवेंटिव मेजर. अब मैं कुछ निकलने की कोशिश करूंगा. दूसरा तरीका क्या था? प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव मतलब बिफोर हैंड आई एम गोइंग टू सी द एंटायर थिंग. मैं गूगल मैप में देख लिया, पूरा ट्रैफिक देख लिया, कहाँ रेड है, कहाँ ऑरेंज है, कहाँ ब्लू लाइन है ना? क्लियर? अगर सारा क्लियर है, ब्लू है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, देन आई एम गोइंग टू मूव अहेड. अदरवाइज कहीं ऑरेंज है या कहीं आपका ग्रे कलर का है, कहीं रेड है ना, कुछ इस कलर कोडिंग कुछ ऐसी दी हुई है, तो रेड है मतलब काफी ट्रैफिक है उस केस में. सो इन दैट केस आई एम गोइंग टू गो फॉर अवॉइडेंस. मैं पहले ही अवॉइड कर लूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस पाथ, है ना? तो हो सकता है कि मैं डासना से चेंज करके पेरिफेरल ले लूँ, ईस्टर्न पेरिफेरल, ऊपर ही निकल जाऊं दिल्ली. गेटिंग? तो दिस इज ऑल अबाउट द केस. तो यहां पर भी वही हो रहा है कि दिस ए इज अनअवेयर ऑफ दिस सी एंड सी इज अनअवेयर ऑफ दिस ए. लेकिन बी को दोनों का पता है कि ए भी है और सी भी है. बी कैन सेंस ए, बी कैन सेंस सी ऑल्सो. क्लियर? सर, हाँ बोलिए. सर, कोलिजन अकर होने के लिए ट्रांसमिशन मीडियम का कॉमन होना जरूरी है. मतलब A to B एंड C to B सेम ट्रांसमिशन मीडियम होगा तो कोलिजन होगा, या डिफरेंट मीडियम्स होने पर भी कोलिजन हो सकता है? डिफरेंट मीडियम पे भी होगा, क्योंकि दिस मीडियम इज डिफरेंट फ्रॉम दिस मीडियम. इन दिस केस इट इज वायरलेस. यस. वायरलेस के केस में हाँ, अगर वायर्ड है देन इन दैट केस वी आर बाउंड टू यूज दैट चैनल. अगर वायर्ड है, लैन वायर से ट्रांसमिट करना है और यही चैनल यूज करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, देन इन दैट केस वी आर गोइंग टू गो फॉर दिस. अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया वायर्ड और वायरलेस के केस में. तो जब भी इंटरव्यूअर का पेट क्वेश्चन होता है कि वायरलेस
वाले केस में मैं ये यूज करूंगा या ये यूज करता हूं? मोस्ट ऑफ द टाइम, क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वेदर वी आर यूजिंग CSMA CA और CSMA CD इन वायरलेस ट्रांसमिशन। वायरलेस ट्रांसमिशन में इन दोनों में से मैं कौन सा यूज करता हूं? बहुत इंपॉर्टेंट और पेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का। CSMA CA वायरलेस के लिए होता है। हाँ बोलिए। somebody was trying to give the answer, please ask। कुछ पूछना पूछिए। नो आइडिया। अच्छा, एक मैं हिंट दे देता हूं, है ना। नाउ सपोज n number of stations are there, 1 2 3 4 5, बस बहुत सारे स्टेशन है, n number of stations are there। और यहां पर मुझे ट्रांसमिट करना है, दिस इज अनदर स्टेशन, सपोज 6th स्टेशन इज हियर विच इज एक्टिंग एज वन ऑफ द सर्वर। क्लियर? अब इस केस में एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू डेटा, ये यहाँ किया, ये यहाँ कर रहा है, ये यहाँ कर रहा है, सभी को ट्रांसमिट करना है ये सारा चीज। क्लियर? तो इस केस में सिंस इट इज वायरलेस, सो ऑल द स्टेशंस आर एबल टू सेंस दैट, ये पहले ही सेंस कर लेगा कि some communication is going on between 6 and 5, so I am not supposed to send the signal। Clear? Some communication is already going on from 4 to 6, so I am not supposed to send the packet, isn't it? So it is sensing beforehand, है ना? Avoidance। तो आंसर क्या होगा? Yes, very good। Avoidance। मैं अवॉइड कर सकता हूं, बिफोर हैंड आई कैन टेक सम स्टेप, क्योंकि वायरलेस हो रहा है। तो जब भी वायरलेस के बारे में बात होगी तो CSMA CA यूज करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का। आप बुक वगैरह में भी देखेंगे तो उसको हाईलाइट करके वो रखेंगे। तो आई कैन अवॉइड वायरलेस कम्युनिकेशन में, है ना, 1 से 5 में करना है, 1 से 6 में करना है, 1 to 2 करना है। सो इन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम वी कैन अवॉइड बेस्ड ऑन द सिग्नल दैट वी आर एबल टू सी कि सम कम्युनिकेशन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। एक क्लियर टू सेंड अभी आगे चल के देखेंगे, क्लियर टू सेंड करके अभी हम लोग देखेंगे। एक रिक्वेस्ट टू सेंड, है ना, एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि रिक्वेस्ट कर, एक सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए रिक्वेस्ट टू सेंड, और अगर क्लियर है, कुछ भी नहीं है, तो क्लियर टू सेंड वो भेजेगा। क्लियर? तो इससे क्या हो रहा है कि वी आर एबल टू सी दैट दिस नन ऑफ द चैनल इज फ्री, है ना। सपोज आई वांट टू ट्रांसमिट फ्रॉम सपोज 2 to 6, but some packets has already been transmitted from 1 to 6. At the same time, it is already in the process of transmitting the packet from 1 to 6. So in this case, this 2 is not going to send the packet to this 6 for that period of time, isn't it? So in that case, we are going to use CSMA CA। Wireless के केस में मैं सेंस कर पाता हूं, but it is not the case with your LAN wire और वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क में क्या है, जब मैं यहां पर पैकेट सेंड होगा, जब कोलिजन होगा, सपोज द कोलिजन इज गोइंग टू हैपन समवेयर हियर, है ना, बहुत सारे चैनल इसमें, बहुत सारे ये, जब कोलिजन हुआ तब मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि मुझे अपनी स्पीड को घटानी है। क्लियर? सो आई एम नॉट सपोज टू सेंड द पैकेट फॉर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बैक ऑफ टाइम बोलते हैं। उतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं रोक दूंगा। क्लियर? स्पीड कम कर दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब भी मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं, है ना, कोई और भी स्टेशन उस समय ट्रांसमिट कर दे रहा है, बिकॉज ऑफ दैट सम कोलिजन इज देयर, सो आई एम गोइंग टू स्लो डाउन द स्पीड। तो जब भी होता है कोलिजन डिटेक्शन, तो डिटेक्शन, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू से कि वायर्ड पे हो रहा है, और वायरलेस पे जब मैं बात करूंगा तो ये मैं उसको सेंस भी कर पाऊंगा। तो सेंस तो दोनों के केस में हो रहा है, तो मैं उसको अवॉइड भी कर सकता हूं। So I'm going to avoid in case of wireless, but यहां डिटेक्ट होने के बाद मुझे पता चल रहा है, तब मैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर ले रहा हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे सिनेरियोज हैं। तो मुझे आप लोगों को पता चल गया होगा। एक बार मिनिमाइज करता हूं, इस पे वापस आते हैं। तो इसका सोल्यूशन यही हुआ, है ना, कि जब मेरे पास ट्रांसमिशन हो रहा है, पहले तो मैंने रिक्वेस्ट किया, दिस A इज रिक्वेस्टिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड टू सेंड द पैकेट टू B। नाउ B इज सेंडिंग, है ना, जब इस B के पास कोई अभी प्रोसेस नहीं चल रहा, सो इट इज सेंडिंग दैट क्लियर टू सेंड, है ना, नो प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो इसके पास सोर्स का भी एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन का भी एड्रेस है। तो CTS पैकेट में वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है।
to send the packet to B, clear? तो वो deny कर देगा. This B is going to deny कि I am in the process of getting the packet. मुझे पैकेट मिल रहा है ऑलरेडी. क्लियर? कहीं से मैं पैकेट रिसीव कर रहा हूं. Are you getting? तो in this way we are able to avoid this. तो यहां पर देखिए, ये आपका this is called hidden problem. क्योंकि A is unable to see B, sorry, A is unable to see C, C is unable to see A. So this is called hidden problem. है ना? So C is hidden, है ना? And in this case A is hidden to C. तो ये hidden problem हो गया. So on the other hand, one exposed problem is also there. तो देखते हैं exposed terminal problem क्या है. उसी तरीके से सारा चीज है. तो exposed problem में एक फिर से सिनारियो थोड़ा सा ले लेता हूं. Oh sorry. So still time is there, है ना बच्चों? तो एक्सपोज में एक थोड़ा छोटा सिनेरियो ले लेता हूं. वेयर इज दैट? ठीक, लेट्स गो फॉर दिस. ऐसे देखिए, ऐसे बना देता हूं विदाउट यूजिंग दैट, है ना? एक छोटा सा सिनेरियो ले लेता हूं. A, B, C, D, कुछ इस तरह से ले लेता हूं. क्लियर? अच्छा, और इसका कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा. अच्छा, अब इस केस में क्या हो रहा है? नाउ B इज सेंडिंग द डेटा टू A. अब देखिए, B इसमें से ये सेंड स्टार्ट कर दिया, सेंड करना. अभी कम्युनिकेशन ये सारा चल रहा है. क्लियर? नाउ C इज गोइंग टू सेंस कि B, जब C जब ये सेंस कर रहा है कि B इज नॉट इन द C इज नॉट इन द आई मीन पोजीशन टू गेट द डेटा फ्रॉम C. अब C को भी भेजना है B पे, लेकिन राइट नाउ B इज नॉट इन पोजीशन टू गेट द डेटा फ्रॉम C, क्योंकि इसके विसिनिटी में है, इसके पास में है. क्लियर? इसको मैं ऐसे कर देता हूं, अदरवाइज इट इज विजिबल. पास में आपको दिख रहा होगा कि दिस C, है ना, C is capable enough to sense this B. C is capable enough to sense this D, है ना. These are the station, है ना. मोबाइल स्टेशन बोल लीजिए या मोबाइल बोल लीजिए या वाईफाई डिवाइस कोई है ना. तो C सेंस कर रहा है B को, C D को भी सेंस कर रहा है. बट बिकॉज ऑफ दिस B, है ना, C इज गोइंग टू C को ऐसा लग रहा है कि आई एम अनेबल टू सेंड द एंटायर डेटा, जबकि इसका रेंज ये है. क्लियर? तो C को क्या लग रहा है कि सिंस द प्रोसेस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, सो आई एम अनेबल टू सेंड द डेटा, जबकि B इज फ्रीली अवेलेबल फॉर D. अगर C को भेजना है कोई डेटा तो वो D को भेज सकता है. गेटिंग? लेकिन इसने क्या जज कर लिया, क्या मान के ऐसा बैठ गया कि C इज इंटरेस्टेड टू सेंड द डेटा टू B, इसको B को भेजना था. क्लियर? तो ये एज्यूम कर लिया कि none of the station is free for which that particular data which is already being taken care by this C is going to be sent to this node which is away from this B, which is not exactly B, rather there may be some node which is D, E, F, lot many node may be there in that vicinity, but this C is assuming that since the process is already going on with this B, so C cannot send the data to any of the node, even to D or some more nodes are there. So this is going to assume that this is unable to send the data. So this is what is called exposed problem. So this is already exposed. This is already available for the data transmission, but still this C is not sending the data, assuming that since C is going to send the data to B, and first C is going to send the data to B, but since this B is already engaged with some of other node, so in that case this C is going to assume that right now none of the channel is free, so that C is going to send the data to some of the different node which is in that vicinity.
even though this D is exposed to this C. So this is what is called your exposed problem. So it is not hidden, है ना? C can find this D, है ना? D is exposed to this C. So how I am going to rectify this sort of problem? Again by using the same process, RTS और CTS, जो यहाँ पर हमने देखा था, this one. Clear? So RTS और CTS से फिर हम इसको solve कर सकते हैं. Clear? So they would have made some more node. एक यहाँ पर node उसको और बनाना चाहिए था, इससे और easy हो जाता. तो वो that is going to be your exposed problem. Clear? अब इस केस में मान लीजिए सपोज इस केस में 3 इसलिए लिया है कि इसको भेजना है, इसको भी. Now this B wants to send the data to this A and B wants to send the data to C, this C. Clear? तो उस तरीके से उसने यूज किया है. लेकिन समझने के लिए जब भी आप बनाएं तो आप 4 नोड ऐसे बनाएं, इस तरह से बनाएं. ये प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है एंड सी इज सेंसिंग दैट दिस चैनल इज नॉट फ्री, तो वो एज्यूम करके बैठ जा रहा है कि none of the channel is there which is free for this C, and though it is wireless, कोई कहीं भी भेज सकता है. तो दिस इज एक्सपोज्ड, इसके पास है ये इसका इंफॉर्मेशन, बट C is unable to send the data. तो उस केस में वही RTS और CTS, है ना, क्लियर टू सेड, मेरे पास वो जो चैनल है वो फ्री है, क्लियर हूं मैं, मेरे पास कोई अभी प्रोसेस में पैकेट्स नहीं ट्रांसमिट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं. तो ये जो पहले वाली प्रॉब्लम थी वो अब ये सब रिमूव हो चुकी है. सो दिस वेयर ओल्ड प्रॉब्लम, बहुत पहले प्रॉब्लम्स होती थी, अब ये उसके अंदर बहुत सारे एनहांसमेंट हो चुके हैं. सो एज्यूमिंग दिस इज वेरी क्लियर, बच्चों समझ आ रहा है? यस. ओके. अच्छा, एक कॉमन राइट एक कॉमन डिफरेंस ये है, मैंने इसको इलेबोरेट किया हुआ, तो लेट्स गो फॉर दिस. तो CSMA वाला जो पार्ट है, CD और CA दो पार्ट है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे. कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, है ना, विथ कोलिजन डिटेक्शन एंड दिस इज कोलिजन अवॉइडेंस. क्लियर? तो अब ये देखिए वही चीज बोल रहा है कि हमें जब ये बोल रहा है कि कोलिजन होने के पहले हमें पता चल जा रहा है ना, बिफोर कोलिजन. अवॉइडेंस का मतलब ये है कि मैं अवॉइड कर पा रहा हूं, और इस केस में क्या है, कोलिजन होने के बाद पता चल रहा है ना. सो दिस इज इफेक्टिव, ये एल्गोरिथम इफेक्टिव कब होगा? आफ्टर कोलिजन. कोलिजन हो गया तब मैं कुछ स्टेप ले पा रहा हूं कि अब क्या किया जाए. सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए, है ना. तो CD इज यूज फॉर वायर्ड नेटवर्क, है ना. जब तार से जा रहा है, पैकेट ड्रॉप हो गए, तब मुझे पता चल रहा है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना. निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ रहा है ना, वो पैकेट नहीं रीच कर पाया तो NAC भेजा उसने, या फिर से उसको पैकेट को भेजिए, तब मुझे पता चल पा रहा है अच्छा कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, मुझे स्लो डाउन करना है, अपनी स्पीड को घटाना है, या कुछ और मुझे एल्गोरिथम लगानी है. और ऑन द अदर हैंड ये किसके लिए यूज कर पा रहा है ना, मैं पहले ही उसको अवॉइड कर पा रहा हूँ. क्यों अवॉइड कर पा रहा हूँ? क्योंकि सारे, है ना, 10, 15, 100 जितने हैं सारे विसिनिटी में है, आसपास है. तो मैं पहले ही उसको जज कर पा रहा हूँ कि ऑलरेडी प्रोसेस इज गोइंग ऑन और इट इज द प्रोसेस इज नॉट गोइंग ऑन, है ना. ऑलरेडी सम पैकेट्स आर बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम A to B, और स्टिल सम नोड्स आर फ्री, है ना, टू विच आई कैन सेंड द डेटा. तो पहले ही वायरलेस में वो सिग्नल को चेक कर पा रहा है ना. जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैं कि वो इसको अवॉइड कर पा रहा है. इस केस में देखिए, है ना, इस वाले केस में जो हमने लिया था कि सभी को आपस में पता है कि प्रोसेस कहां से कहां चल रहा है. लैन वायर में क्या है, ये लैन वायर है, अब कोई प्रोसेस पता नहीं है. जब यहां पर कोलिजन होगा तब इसको, है ना, बैक प्रोपगेशन होगा, तब इसको पता चलेगा अच्छा सम प्रॉब्लम इज रियली हैपनिंग, यहाँ कुछ कंजेशन है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है. गेटिंग? तो वायर्ड के केस में कोलिजन होने के बाद पता चल रहा है, और वायरलेस के केस में क्या है, मैं पहले ही सेंस कर पा रहा हूं, मैं पहले ही अवॉइड कर पा रहा हूं कि मैं भेजूंगा तो कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि सम प्रोसेस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, सपोज बिटवीन 1 and 6, so 2 cannot send a packet at the same time, so it has to wait for some interval of time till the entire packet from 1 to 6, है ना, is going to be exhausted. ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? तो ये पार्ट हो गया. थर्ड पे आते हैं.
है ना, इट ओनली रिड्यूसेस द रिकवरी टाइम, जो रिकवरी टाइम जो हम लोग वो कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहा है। और ये उससे भी ऊपर है कि इट मिनिमाइजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, है ना, कोलिजन होने के पहले ही वो सेंस कर लिया तो इट इज नॉट गोइंग टू सेंड। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट केस, है ना, एज कंपेयर टू CD, क्योंकि मैं पहले ही अवॉइड कर ले रहा हूं चीजों को। फाइन। नेक्स्ट, रीसेंड द डेटा फ्रेम वेन एवर कन्फ्लिक्ट ऑकर, जब कन्फ्लिक्ट होगा, पैकेट डिस्ट्रॉय होगा, तो ऑब्वियसली NAC निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और मुझे फिर से पैकेट सेंड करना पड़ेगा। सपोज पैकेट नंबर 5th इज डिस्ट्रॉयड, सो अगेन इट इज गोइंग टू सेंड NAC फॉर 5th पैकेट, है ना। बहुत सारे एल्गोरिथम होगा, स्टॉप एंड वेट हो सकता है ना, गो बैक एन हो सकता है, बहुत सारे एल्गोरिथम है, उसमें से कोई सा भी उसने वो यूज कर रहा होगा तो वो सारा का सारा रिपीट करेगा आपस में। क्लियर? ठीक है ना? हाँ, तो इसमें अब ये क्या हो रहा है कि जब CA वाले में क्या है कि फर्स्ट ट्रांसमिट किया, है ना, उसी समय वी आर एबल टू आइडेंटिफाई। मैंने सारा पैकेट में बार बार भेज रहा हूँ, फिर से 10 पैकेट भेज दिया, फिर 10 पैकेट के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। इन द वेरी बिगिनिंग वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, है ना, फर्स्ट पैकेट में, फर्स्ट ट्रांसमिशन में ही हमें आइडिया लग जाएगा अगर कुछ ऐसा होता है तो। अच्छा, इस केस में वी आर यूजिंग इथरनेट, है ना, इथरनेट जो आपका LAN वायर यूज होता है, RJ45 कनेक्टर आप डालते हैं NIC कार्ड में, इजंट इट? तो वो कौन सा 802 का कौन सा फैमिली का है? उसका फैमिली मेंबर क्या है? 3, है ना। 802 एक बड़ी फैमिली है, उसका एक मेंबर है 3, इसको इथरनेट बोलते हैं, शॉर्ट में IEEE, है ना। 802.3 आप करेंगे तो इसमें दिखाएगा इथरनेट। और 802.11 ये कई बार डिस्कस कर लिए हम लोग, है ना, ये वायरलेस के लिए होता है, वाईफाई के लिए होता है। ब्लूटूथ के लिए कौन सा होगा? 802.151, 802.15.1 ब्लूटूथ के लिए। ये 3-4 चीज आपको याद करना पड़ेगा, है ना, टोकन बस, टोकन रेन, है ना, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इथरनेट के लिए हो गया, मतलब LAN वायर के लिए हो गया, ये वायरलेस के लिए हो गया। तो ये सब डिफरेंस इसमें प्रोमिनेंट डिफरेंस है। क्लियर? तो ये सिंपल है ना, दिस इज मोर इफिशिएंट, इट इज मोर इफिशिएंट देन सिंपल CSMA, क्योंकि सारे पैकेट एक एक करके भेज दो, सेंस वेंस करने की जरूरत नहीं है ना। तो इट इज सिमिलर टू सिंपल CSMA। जो सिंपल CSMA का जो पार्ट है, CSMA के जब आप एल्गोरिथम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक बैक ऑफ टाइम होता है। क्लियर? तो वो एल्गोरिथम, बोथ ऑफ देम आर यूजिंग द एल्गोरिथम। क्लियर? तो वो बैक ऑफ टाइम कितना बढ़ाना है, घटाना है, वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। और जो CTC में बता रहा था, इसमें वो ड्यूरेशन भी बता देता है। तो समवेयर वी आर शोइंग दैट CTC, ये है ना, ये रिक्वेस्ट टू सेंड है और क्लियर टू सेंड। जब क्लियर टू सेंड पैकेट में भेजूंगा तो इसी पैकेट पे मैं ये भी बताऊंगा कि मेरी जो पूरी जो मैसेज है वो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट मैसेज, और उसके बेस पे C इज गोइंग टू आइडेंटिफाई, C को पता चल जाएगा कि मुझे कितने टाइम तक वेट करना है। गेटिंग? मान लीजिए A ने ट्रांसमिट किया B को, अब ये CTC पैकेट में ये सारे इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट हो जाएंगे कि इसको इतना टाइम लगना है ना, 2 MB का डेटा है। अब ये 2 MB का डेटा जो है वो किसको भेजेगा? C को भी भेज देगा। अब C को आइडेंटिफाई, C इज गोइंग टू आइडेंटिफाई कि 2 MB का पैकेट है तो मुझे कितना वेट करना है और कितने टाइम के बाद फिर से मैं RTS भेजूं, रिक्वेस्ट टू सेंड भेजूं। गेटिंग? तो ये सारा प्रोसेस चलता है। तो आई एज्यूम ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिडन प्रॉब्लम और एक्सपोज प्रॉब्लम इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस नेटवर्क, चाहे वायरलेस हो चाहे वायर्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट।